मेरे तरफ देखो. Yesterday night, due to some problem of connectivity, internet, the lecture could not be completed, but it will be there tonight. Lectures miss मत करो एक भी. समझा क्या? Want your attention. Couple of, in fact, 3 problems were given to you for the homework, right? 3 problems were given to you for the homework, right? किया है? नहीं किया है. नाही किया है. मी बघणार आहे काय? म्हणजे नोटबुक. खरंच किया है. I'll just discuss the procedure calculation part you can manage. 7 problem was given to you for the homework. Train goes at the speed of 70 kilometers per hour. Train B goes at the speed of 80 kilometers per hour. C goes at the speed of 90 kilometers per hour. So 60, 70, 90 ये जो है वो क्या है? स्पीड है. स्पीड है तो हार्मोनिक मीन है. And therefore the calculation will be like this. This is equal to n upon summation 1 upon x. So it will be 3 upon 1 upon 70 plus 1 upon 80 plus 1 upon 90. 3 upon that. कितना आया? थांब जरा बोल ग. तू केला म्हणते ना होमवर्क. सांग कितना आया? 79 पॉइंट. कडक. हाँ. बैग नहीं लगना. नहीं नहीं थांबा. Picture है. Okay. I come on to the question number 8. The plane flies from A to B at the rate of 500. Again, you have got the speed. So harmonic mean is 2 upon 1 upon 500 plus 1 upon 700. ये समझा बाळांनो? ठीक है. A man purchases 100 rupees worth eggs from the 10 different markets. अभी 100 rupees worth eggs. मतलब इन ईच मार्केट यू आर स्पेंडिंग 100 रुपीज. हर एक मार्केट में आप 100 रुपीज स्पेंड कर रहे हो. तो फिर क्या होगा? दैट न्यूमरेटर इज अ कांस्टेंट. व्हाट विल वेरी इज अ प्राइस. व्हाट विल वेरी इज अ रेट. तो फिर जो क्वांटिटी मिलेगी वो डिफर होगी बिकॉज ऑफ द डिनोमिनेटर. देयरफॉर वी विल बी यूजिंग द हार्मोनिक मीन. ये समझा? इज दैट क्लियर? से यस. नाउ I take up the note on which one question minimum will be there. It was there in your attempt in which you failed. That time also it was there. समझा क्या? ये तुम्हारा थोड़ा सा इंसल्ट मैं करता हूं इसलिए कि एटलीस्ट बिकॉज ऑफ इंसल्ट यू विल टेक इट एज अ चैलेंज टू प्रूव दैट आई एम रॉन्ग. और आपके साथ हार में हम हमारी जीत मानते हैं. हरी बोलो ना. Look at me. I go. क्या हुआ? Look. Step back. Imagine that the x observations are the large observations of 101, 103, 105, 1001, 1003, 1005, something like that. Then calculation will become hectic. Calculations will become tedious. समझा ना? तो फिर उसे रिड्यूस करना चाहिए. बहुत बड़ा है तो तकलीफ होती है, तो थोड़ा सा रिड्यूस करो कैलकुलेशन. है कि नहीं? तुमचं वय काय? तुम्हाला कळतं किती काय ते? अभी इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये x में से we may subtract something. Generally we subtract, we may add also. We may multiply, but generally we don't multiply, we divide because division will reduce the values. 10, 20, 30 और 10 से डिवाइड किया तो 1, 2, 3 बनता है. तो कहने के लिए हम कहेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन, बट प्रैक्टिकली तो कहते हैं सिर्फ सब्ट्रैक्शन.
कहने के लिए कहेंगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, बट यू विल डू इन प्रैक्टिस व्हाट, जनरली डिवीजन. तो आई वुड से ए से मल्टीप्लाई किया मतलब डिवाइड किया, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और फिर मैंने ये बी ऐड किया, मैं सबट्रैक्ट किया. ऐड करो सबट्रैक्ट करो, देन x इज कन्वर्टेड टू व्हाट, y. x इज कन्वर्टेड टू y. एक प्रॉब्लम इस पे आने वाला है 100%. नहीं आया तो मेरे को बोलो, मैं कहूंगा कि आता जून दिसंबर अटेम्प्ट में आएगा. ऑलराइट, तो यहां मैंने क्या किया, आई ऐड समथिंग, आई सब्ट्रैक्ट समथिंग, एडिशन ऑफ समथिंग, सब्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग इज द चेंज ऑफ origin. Addition subtraction is the change of origin, and multiplication division is the change of scale. This is the change of scale. समझा? कुछ ना कुछ लिखो, मतलब now you have to write. अगर ये सही है तो फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ y, MCT of y is equal to a into MCT of x, that plus b. MCT of y, any measure of central tendency of y. अभी यह क्या हो सकता है measure of central tendency? It could be arithmetic mean, it could be mode, it could be median. These are the arithmetic means, na? Any arithmetic mean, mode, median, measure of central tendency of y is equal to a into measure of central tendency of x plus what, b. Abhi, if I take any measure of dispersion of y, what is dispersion? Variation. So that is equal to a into measure of dispersion of x, a into measure of dispersion of x. अभी what is dispersion? Variation. अगर मैंने फोफो 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 ऐसा लिखा तो इसमें कुछ वेरिएशन है क्या? तो एनी वेरिएशन इन दिस केस, दैट मीन्स द मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज गोइंग टू बी 0. कांस्टेंट अगर है तो इसमें वेरिएशन नहीं है. यू अंडरस्टैंड? हाँ, लेकिन कल एक गर्लफ्रेंड थी, परसों एक गर्लफ्रेंड थी, त्याच्या आधी एक गर्लफ्रेंड, तो वेरिएशन हो रहा है, तो फिर वेरिएशन है, मतलब मेजर ऑफ डिस्पर्शन है. बट इफ यू कंसिडर एन इनोसेंट पर्सन लाइक मी, no variation. समझा? And therefore measure of dispersion of constant is 0. We'll write the note. So plus ये जो measure of dispersion of b है वो 0 होएगा. It will be 0. समझा ना? So that means it will just become a into measure of dispersion of x. बट रिमेंबर, डिस्पर्शन जब हम कहते हैं तो हमें वेरिएशन में इंटरेस्ट है, क्वांटम ऑफ वेरिएशन में इंटरेस्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएशन में इंटरेस्ट है. तो वेरिएशन कितना होता है? अगर एवरेज के ऊपर है तो पॉजिटिव है, एवरेज के नीचे है तो निगेटिव है. पॉजिटिव निगेटिव ये क्वालिटेटिव फैक्टर हो गया. बीबी प्यार करती है तो पॉजिटिव फैक्टर है, फिर डांटती है तो निगेटिव फैक्टर है. समझा ना? That positive negative factor is a qualitative factor. In this case I become romantic, in this case I become frustrated. समझा? But how much is the variation we are interested? So we are not interested in the positive negative sign. हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये पॉजिटिव है मतलब एवरेज के ऊपर है या निगेटिव है एवरेज के नीचे. हमें क्या देखना है? मैग्नीट्यूड देखना है. एंड देयरफॉर ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन कभी भी नेगेटिव होता नहीं है. तो इसलिए भी पुट इट इन द मॉड्यूलस साइन. मॉड्यूलस साइन का मतलब होता है कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव कंसीडर करो. समझा? तो कुछ कुछ होता है, और ये कुछ कुछ क्या होता है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ए भी प्रेजेंट है, ए का एग्जिस्टेंस है, बी का भी एग्जिस्टेंस है. That means measure of central tendency depends on A and B. A B की वैल्यू बदलेंगे तो measure of central tendency भी बदलेगा, है कि नहीं?
तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये एमसीक्यू है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिपेंड्स ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। बट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में क्या हो गया, बी आया ही नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास बी नहीं से, समझा ना? तो फिर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, but it does depend on A. That means it is dependent on change of scale. ये समझा क्या बात ना? तो कहीं तो भी ये नोट वैसे यहां है, नोट वैसे यहां है, फिर भी लिखो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल वैसे तो यहां है, फिर भी लिखो। क्या लिखेंगे? एडिशन सब्ट्रैक्शन इज द चेंज ऑफ ओरिजिन, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन इज द चेंज ऑफ स्केल। हाँ, तो यहां जो A है वो है चेंज ऑफ स्केल, B है वो है चेंज ऑफ ओरिजिन। से यस। अभी लिखो यहां कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ K का मतलब क्या? कांस्टेंट विल बी K मीन इज K। हाँ, एक्सेप्ट मोड डज नॉट एग्जिस्ट, वो हम देखेंगे आगे थ्योरी में। सब वैल्यूज इक्वल है तो मोड डज नॉट एग्जिस्ट, बाकी सब दैट विल बी इक्वल टू K। Measure of dispersion of K is always 0. Why? Because there is no variation. Variation नहीं है तो measure of dispersion 0 है। समझा क्या? समझना की अभी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी सब एमसीक्यूज है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में बी पॉजिटिव, में बी नेगेटिव, में बी 0। एवरेज प्रॉफिट आपका जो होता है, आज 2 रुपए मिला, कल 5 रुपए मिला, तो एवरेज हो गया। अब ये एवरेज नेगेटिव भी तो हो सकता है ना, आज 2 रुपए का फायदा हो गया, कल 5 रुपए का घाटा हो गया, तो फिर 2 - 5 -3/2 -1.5, तो 1.5 रुपीज का नुकसान हो गया। और इसके लिए वो नेगेटिव भी हो सकता है, इट विल बी 0 ऑल्सो। आज मिला 2 रुपए, कल गए 2 रुपए, तो 0 हो गया। So measure of central tendency may be positive, may be negative, may be what? 0. But measure of dispersion may be 0, but measure of dispersion can never be negative. Can never be negative. Measure of dispersion can never be negative. ये समझा क्या बाळांनो? हो म्हणा की अभी if that is true, then any measure of central tendency of Y is A into measure of central tendency of X, and measure of dispersion of Y is A into measure of dispersion of X. Only thing is that we put a modulus because we want to ignore, get rid of what? Negative side. ये समझा बाळांनो? वेरी गुड। वैसे वो भी यहाँ लिखा है, वो जो नोट्स मैंने तुमको बोला वो भी यहाँ लिखा है, पर हाथ से करेंगे तो जरा अच्छा होता है ना। अभी कुठे गेली ती? काल होती जी शेजारी, ती कुठे गेली? काय अशी? कसं रे? So MCT of K is K, average of K is K, measure of dispersion of K is 0. MCT may be positive, negative, any real number. Measure of dispersion is never negative. अभी ये जो लास्ट सेंटेंसेस है those are also very important. Measure of central tendency is dependent on change of origin and scale, and measure of dispersion is independent of change of origin and scale. Measure of dispersion is independent of change of origin and what scale. बाळांनो ये समझो, हो ना? लिखा क्या तुमने? इज दैट क्लियर? तो ये नोट्स है, नोट्स के ऊपर प्रॉब्लम्स हो गए, आइदर थ्योरी विल कम और थ्योरी बेस्ड एग्जांपल्स विल कम। इफ दैट इज ट्रू, ये 10 क्वेश्चन की तरफ देखो।
Look at the question number 10. 2x plus 3y minus 10 is equal to 0. हम ऐसा इक्वेशन नहीं रखते, हम कौन से फॉर्म में लाना पड़ेगा? y इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू समथिंग. तो फिर बोलो क्या करेंगे? 3y is equal to minus 2x plus 10. So y will be equal to minus 2 by 3x plus 10 by 3. तो हमारे अर्लियर नोटेशन के रेफरेंस में ये बन गया आपका b और ये बन गया आपका a. ax प्लस b ना, ax प्लस b. समझा क्या? वेरी गुड. नाउ इफ दैट इज ट्रू, any measure of central tendency of y will happen to be minus 2 by 3 into measure of central tendency of x plus 10 by 3. सिंपली आपको वहां एमसीटी डालना है, बस बाकी कुछ नहीं. कुछ तो डालेंगे तो कुछ तो मिलेगा. लेकिन any measure of dispersion of y is modulus of minus 2 by 3 into measure of dispersion of x. क्योंकि ये जो 10 है उसका dispersion 0 है. 10 10 10 10 10 10 no variation, तो measure of dispersion is 0. Is it clear? अगर ये सही है तो यहां देखो पहले केस में क्या है? x bar. x bar means what? mean is measure of central tendency or dispersion? Central tendency. And therefore measure of central tendency mean of y is y bar. Mean of y will be what? Y bar. That will be equal to minus 2 by 3 into x bar plus 10 by 3. So yes, this is 10 by 3. समझा ना? तो अभी x bar दिया है उन्होंने, तो it will be minus 2 by 3 into 30 plus 10 by 3. तो minus 60 by 3 plus 10 by 3. तो minus 50 by 3 is the answer that you want. समझा? पूर्वा कर रहे हो? Good. Is that clear to everyone? Good. तो फिर सेकंड करो, मोड. अभी तुम करेंगे क्या? मोड भी तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ना. तो जैसे एक्स बार कहा था वैसे मोड आएगा और फिर मीडियन आएगा. तुम करो, हम रुकते हैं, तुम करो. कभी कभी ये भी मजा आता है कि तुम करो, हम सिर्फ देखते हैं. समझा? तुम करेंगे या मैं करूं? जब तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकते मेरे को बोलो, मैं कर दूंगा आपके लिए. प्रॉब्लम. काय ठरलं?
हो गया क्या बाळांनो? काय आहे? So come on. Mode of y will be equal to minus 2 by 3 into mode of x, that plus 10 by 3. So that is equal to minus 2 by 3 into 15 plus 10 by 3. समझा क्या बाळांनो? तो फिर कितना आयो? Minus 30 plus 10, that is minus 20 by 3. आया? Measure of this central tendency may be negative. Similarly, median of y is minus 2 by 3 into median of x plus 10 by 3. लेकिन ये 5 दिया है तो minus 2 by 3 into 5 plus 10 by 3 minus 10 by 3 plus 10 by 3. Obviously, what is this? 0. Is that clear? समझा आपको? समझा करो, अगर कुछ नहीं समझा तो पूछा करो. अभी range of x is 2. अभी what is range? Range is a measure of dispersion. Quartile deviation is a measure of dispersion. Mean deviation is a measure of dispersion. Standard deviation is a measure of dispersion. And variance is standard deviation with square effect. समझा? तो फिर अभी उसी इक्वेशन में मेजर ऑफ डिस्पर्शन हो गया तो क्या मिलेगा? रेंज ऑफ y will be modulus of minus 2 by 3 into range of x. हाँ, तो फिर this will be 2 by 3 into 2 will be 4 by 3. Then my question is, measure of dispersion of y is modulus of minus 2 by 3 into measure of dispersion of x. So this is 2 by 3 into 3. What is this? This is what? What is this? This is 2. ये समझा? अभी standard deviation of y, sigma y, will be equal to modulus of minus 2 by 3 into sigma y, sigma x. है कि नहीं? So this is 2 by 3 into 4, which is 8 by 3. ये हो गया standard deviation. But they are asking you the variance. So sigma square y will be 64 by 9. इतना simple है देखो. Very simple. और ना समझ गया. Is that clear बाळांनो? ये तुम्हारे साथ बात करने लगे तो मैं मेरा चाय भूल जाता हूँ, रोज ठंडा होता है. चाय किसकी आज? खान किसकी? हो गया क्या? हाँ, तो फिर अभी
यहाँ 11 क्वेश्चन के तरफ बाद में देखो. Take down an additional question. Start. Take up the additional question. Start. If arithmetic mean of x is a and standard deviation of x is b, and if y is equal to x minus a over b, then what is the arithmetic mean of y and what is the standard deviation of y? Karo bayan. I given you the time. चाय, ये गरम चाय और चाहत, चाय और चाहत इसमें क्या फर्क होता है? चाय और चाहत इसमें का फर्क क्या है? चाय का पहला होठों से लगे तो सिर्फ होठ जलते हैं, चाहत होठों से लगे तो लोगों के दिल जलते हैं. चाय हेलो. A small meeting was going on, that is why there was a delay in starting. हो गया? Is that clear? तो फिर अभी मेरे तरफ देखो. Arithmetic mean of y means y bar. That will be equal to arithmetic mean of x means x bar. ये इसको तुम स्प्लिट कर सकते हैं ना, अपने उस फॉर्म में ला सकते हैं. So it can be written as 1 upon b into x minus a upon b. ये समझा क्या? Is this clear? हम न्यूमरेटर को स्प्लिट कर सकते हैं ना, ऐसा ऐसा. यार कुछ है सर तू तो 1 upon a into x minus a upon b, 1 upon b into x and 1 upon x a upon b. ये समझा क्या स्प्लिट? अभी यहाँ क्या होगा? It will be 1 upon b into x bar minus a upon b. समझा क्या? अरे y bar is measure of central tendency की नहीं. So y bar is equal to 1 upon b. See, once again, y is equal to 1 upon b into x minus a upon b. So y bar will be equal to 1 upon b into x bar minus a upon b. But what is x bar? A. So it will become a upon b minus a upon b will be what? 0. So mean will be what? 0. Mean of y will be what? 0. Then my question is, what is standard deviation of y? It will be modulus of 1 upon b into standard deviation of x. But what is standard deviation of x? Yaar bola na. B. So it will be 1 upon b into b is b, b cut, you get 1. When b cuts, you get what you want. समझा ना? हो ना कि? Is that over? Is this type of problem clear? Okay, take one more question. Small questions, very much expected, very much likely to be there. Hot question for the exam. Start. Write on. If the x values are doubled, if the x values are doubled, if x values are doubled, what is the effect on arithmetic mean and variance? What is the effect on arithmetic mean and variance?
व्हाट इज द इफेक्ट ऑन अरिथमेटिक मीन एंड वेरियंस? तुम करेंगे? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, करेंगे तुम? करो, स्टार्ट. आई गिव यू टाइम. इट्स जस्ट अ लेस देन 1 second you require for getting the answer. Forget about 1 minute. आया कड़क. कड़क. वेरी गुड. इसको मारवाड़ी में क्या बोलते हैं? चोको चोको. चोको चोको. बराबर. चोको चोको. चोको. आई तो फैच. मारवाड़ी है. Look at me. X values are doubled or not. So what it means is y is equal to 2x. Means y is equal to 2x. If that is true, then y bar is equal to 2 into x bar. So arithmetic mean is also doubled. Arithmetic mean is doubled. तो क्या हो गया पहले का आंसर? अरिथमेटिक मीन इज डबल्ड. अभी what you have is standard deviation of y will be modulus of 2 into standard deviation of x, means 2 into standard deviation of x. So what it means is standard deviation is doubled. Standard deviation is doubled. But they are asking about the variance, na? So sigma square y will be 4 times variance of x. And therefore variance of y is 4 times. The variance of y is 4 times. बाळांनो हो म्हणा. चोको चोको ना. हो गया क्या? Take one more question. If the x values are increased by 10, if the x values are increased by 10, if x values are increased by 10, what is the effect on mode? What is the effect on mode and quartile deviation? Mode and quartile deviation. कहो, लिखो, क्या करना है करो. Values are increased by 10. What is the effect on mode and quartile deviation? क्या दिया है? Values are increased by 10 का मतलब क्या? Y will be equal to x plus 10. So mode of y, mode is a measure of central tendency, na? So mode of y is mode of x and that plus 10. So what does it mean? Mode is increased by 10. Mode is increased by 10. रात के लेक्चर में शायद आपको लगेगा कि टाइम वैल्यू की रिवीजन अभी अभी तो की है, वापस क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि तीसरी बार होना नहीं चाहिए. एक अटेम्प्ट हो गया, दूसरा अटेम्प्ट में क्लियर होना चाहिए. तो बार बार करेंगे तो इट बिकम्स अ परमानेंट मेमोरी. समझा क्या? नहीं तो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का प्रॉब्लम अभी दिया आपको, तो आपको आएगा इसकी गारंटी नहीं है. आएगा क्या? इफ आई टेल यू दैट द बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू ₹1 lakh at 10% for the period of 3 years has to be sold to get a profit of 14%. At what price the bond should be sold? ये आएगा क्या तुमको? नहीं आएगा.
इसलिए रिवीजन होती है, समझा ना? जो करना है वो उसको परफेक्ट करो और मेनी टाइम्स करो, और फिर मेरे को बोलो कि ये तो मोड हो गया, अभी क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y इज व्हाट? इट विल बी क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x प्लस 0. 10 वेरिएशन है ना, 10 का वेरिएशन 0 है. दैट मीन्स क्वार्टाइल डेविएशन इज कांस्टेंट. दैट मीन्स क्वार्टाइल डेविएशन विल रिमेन कांस्टेंट. ये समझा? इज दैट क्लियर? वेरी वेरी इजी. But we are not going to the deep revision of that. Na? We are just taking only what the formulae are and what the methods are. Quickly, we are coming to the module exercise today. When the 3-4 exercises additional question bank भी हो जाएगा तो फिर स्कैनर सॉल्व करेंगे. ओके? और जिनको वो प्रिंट आउट लेना नहीं है, आई एम लिटिल शॉक में, लेट मी टेल यू विद थोड़ा सा डिसअपॉइंट के साथ कहता हूँ, सैडनेस के साथ कहता हूँ. मेरे को कल एक मैसेज मिला एक स्टूडेंट से, मैं नाम नहीं बताऊंगा. क्या मैसेज मिला कि आपको जो स्कैनर के प्रॉब्लम्स भेजने हैं वो सब एक साथ भेजो, मेरे को बार बार प्रिंट आउट लेना पड़ता है. अभी मेरा ये कहना है कि ये एडिशनल सेट रिवीजन आपके लिए हो रही है, आपको प्रिंट आउट में क्या दिक्कत है? 24 आवर्स हाथ में मोबाइल तो रहता है ना, मोबाइल से सिर्फ प्रिंट आउट निकालना है, बाकी क्या लगता है उसको? और फिर तुम्हें फाउंडेशन का अटेम्प्ट रिपीट करने में कोई तकलीफ नहीं हुई, तो फिर प्रिंट आउट बार बार निकालने में क्यों तकलीफ होती है कि नहीं? थोड़ा सा इसमें कुछ सीखने की बात है. द अदर डे आई टोल्ड यू देयर वर vacancies for the students like you. One student sent me the message, सैलरी कितनी देने वाली? अरे तेरी क्या हैसियत है? पहले खुद को काबिल बनाओ, मनी विल फॉलो. आपको ये पूछना चाहिए कि वहां क्या एक्सपेक्टेड वर्क है, प्रोफाइल क्या है, वर्क प्रोफाइल, और मैं वो कर सकता हूं कि नहीं, उसके लिए क्या करूं? दिस कुड बी योर क्वेश्चन. आई एम नॉट शाउटिंग एट यू, आई एम नॉट स्कोल्डिंग यू, आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू कि जब तक आप खुद कुछ काबिल नहीं बनेंगे तब तक पैसे के बारे में मत सोचो. आज आपके लिए वर्क एक्सपीरियंस मिलना ये जरूरी है. पैसा कितना मिलेगा? पैसा तो मिलेगा ही ना, और जो मिलेगा वो सफिशिएंट ही होना चाहिए ना, क्योंकि धीरे धीरे जैसा आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे पैसा भी बढ़ता जाएगा. बट द फर्स्ट क्वेश्चन, पैसा कितना मिलेगा? तेरे को क्या आता है? तेरी एज क्या है? पैसे की आज आपकी पैसा मिलाने की एज नहीं है. सी, जितना पैसा मतलब लक्ष्मी, जैसे ही ये गॉडेस लक्ष्मी के पीछे पीछे जाने की कोशिश करेंगे उतनी वो लक्ष्मी आगे आगे जाएगी, आपसे दूर जाएगी. लेकिन आप सरस्वती के पीछे जाएंगे तो लक्ष्मी विल चेज यू, लक्ष्मी आपके पीछे पीछे आएगी. और सरस्वती का मतलब सिर्फ स्टडी नहीं है. सरस्वती का मतलब आप गाड़ी चलाते हो पुणे जैसे रोड पे ट्रैफिक में, वो भी सरस्वती की पूजा ही है. वो नॉलेज है, वो स्किल है, वो आर्ट है. इस तरीके से स्किल सेट और आर्ट सेट को बढ़ाते रहेंगे तो लक्ष्मी विल फॉलो यू. See, there are quite a few doctors available in the society, but there are very few good doctors. There are quite a few advocates, lawyers are available in the market, but there are very few good lawyers. There are quite a few chartered accountants available in the market, but there are very few good chartered accountants. There are many teachers available in the market, but there are very few good teachers. तो आपको very good बनना है, तो फिर आपको कंपटीशन नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी काबिलियत अगर दूसरे में नहीं है तो यू विल ऑटोमेटिकली गेट मनी ना. तो क्या है, बुलंद खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या? समझा? ये बात ध्यान में रखो. तो नेवर आस्क द सैलरी व्हेनेवर यू अप्लाई फॉर. अभी एक साल के बाद शायद आर्टिकलशिप के लिए जाएगी, पहला ही क्वेश्चन क्या देंगे, सैलरी क्या देंगे? फिर बोलेंगे वो 10,000 बोला. 10,000 तो मेरे एक पार्टी में जाते, मैं क्या करूँ? ऐसा करके नहीं चलेगा ना. Don't ask for the salary. Salary will definitely be given to you, and whatever will be given to you, you have to be satisfied with that. आप घर के कितने भी अमीर हो,
लेकिन वो जो 1 रुपया आपको खुद के मेहनत से मिलेगा ना, उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। उसे डिनाई मत करो, उसे रिजेक्ट मत करो, रिफ्यूज मत करो। समझा? इज दैट क्लियर? प्लीज ये कीप इन माइंड, ओके? नाउ आई कंसिडर द प्रॉब्लम नेक्स्ट। लुक एट दिस। इट इज फाउंड दैट, अब ये अलग नोट हो गया, ओके? तो गिव द हेडिंग, यहां है वैसे। Look, wrong and correct observations are given. What is this note? Wrong and correct observations are given. अभी थोड़ा मेरे तरफ देखो, क्योंकि ये immediately after this correlation के चैप्टर में भी लगने वाला है। Look, imagine x values are 1 and 2. Tell me what will be the x square values? Will be 1 square 1 and 2 square 4. अभी मेरे को बोलो कि समेशन x क्या होगा? 1 + 2 3 होता है ना? समेशन एक्स स्क्वायर क्या होगा? 5। अभी किसी ने मेरे को बोला कि ये जो 1 लिखा है वो 1 नहीं है, या जो 1 लिखा है वो 1 नहीं है, दैट इज अ रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, यू आर टेकन 1, वो 11 होना चाहिए। अभी मेरे को बोलो कि ये 3 क्या हो गया? रॉन्ग टोटल हो गया, एंड देयरफॉर दिस समेशन एक्स, दिस इज समेशन एक्स रॉन्ग। हमें चाहिए समेशन एक्स करेक्ट। तो हम क्या करेंगे? ये जो समेशन एक्स रॉन्ग मिला था 3, वो 3 कैसे मिला था? 1 + 2, उसमें से 1 नहीं चाहिए तो उसको सब्ट्रैक्ट करो, जो नहीं चाहिए उसको निकालो, निकालो म्हणजे बाहर निकालो, और जो चाहिए उसको अंदर लो। प्रत्येक बोलण्यावर तुम्ही काहीतरी वेगळा अर्थ काढू नका काय? तो यहां जो x रॉन्ग है उसको सब्ट्रैक्ट करो, और जो x करेक्ट है उसे ऐड करो। Subtract what is wrong, add what is correct. Similarly, tell me summation x square correct will be summation x square wrong. अभी क्या करूं मैं? बोलो 1 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, वो स्क्वायर का इफेक्ट है ना उसको। तो फिर x रॉन्ग का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो और x करेक्ट का स्क्वायर ऐड करो। ये बात ना समझा? लेकिन अभी मेरे को बोलो कि इफ द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, करेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड n, कभी कभी क्या होता है कि रॉन्ग ऑब्जर्वेशन वो देते हैं कि ये रॉन्ग है, हमें पता है, बट करेक्ट क्या है वो नहीं पता है कि नहीं? तो व्हाट विल हैपन विथ n? एक को निकाला बाहर पर किसी को नहीं लिया अंदर। सपोज तुमको 10 बॉयफ्रेंड है और एक उसमें से जो है वो थोड़ा सा डिफेक्टिव है, तो इसको तुमने बाहर निकाला लेकिन किसी और को अंदर नहीं लिया, तो व्हाट विल हैपन ऑन द नंबर ऑफ बॉयफ्रेंड्स? रिड्यूस होगा कि नहीं? एक से एक आया बाहर, कोई नहीं आया अंदर। अभी therefore this n will reduce down by 1. कभी कभी क्या होता है, कोई नहीं गया बाहर, रॉन्ग कोई भी नहीं है, डिफेक्टिव कोई भी नहीं है, लेकिन तुमको वो सेटिस्फेक्शन है तो और एक को अंदर लिया। wrong is not given, correct is given. What will be the effect on n? Will increase। 10 जो बॉयफ्रेंड्स है वो क्या हो जाएंगे? 11। तो दिस विल इंक्रीज, करेक्ट ना? और कभी कभी रॉन्ग भी दिया होता है, करेक्ट भी दिया होता है, जैसे एग्जाम्पल में देखा। अभी व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन n? एक गया बाहर, एक आया अंदर, 10 में से एक गया बाहर और दूसरा एक आया अंदर, तो n पे क्या होगा? विल रिमेन कांस्टेंट, इट विल रिमेन द सेम। ये यहां लिखो, इसे यहां लिखो। समझा ना तुमको? ये इस तरीके से स्टडी करेंगे ना, एक गया बाहर एक आया अंदर,
हमें समझना आसान होता है ना। समझा? कडक ना? कडक ना? कडक म्हणा ना. मला वाटलं मऊ मऊ. हो गया क्या? अभी तुम मेरे को बोलो, ऑन सेम लाइंस इफ आई वांट समेशन 1/x करेक्ट जो हार्मोनिक मीन में लगता है, तो हाउ विल यू फाइंड दैट? अभी ये रेसिप्रोकल है ना, 1/x इज द रेसिप्रोकल, तो कैसे निकालू इसको? समेशन 1/x रॉन्ग माइनस 1/x रॉन्ग, x रॉन्ग का रेसिप्रोकल सब्ट्रैक्ट करो और फिर 1/x करेक्ट, करेक्ट का रेसिप्रोकल ऐड करो. और फिर अगर मेरे को बोलो कि इफ आई कंसिडर द प्रोडक्ट, इफ आई वांट द करेक्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसे मिलता है? मल्टीप्लीकेशन. उसमें से एक ऑब्जर्वेशन नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा. मल्टीप्लीकेशन में अगर रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा. सो व्हाट यू विल डू इज इट विल बी द प्रोडक्ट रॉन्ग, प्रोडक्ट रॉन्ग माइनस, आई मीन डिवाइडेड बाय x wrong and then multiply by x correct. जो सब रॉन्ग है उसे सब्ट्रैक्ट करो, आई मीन उसे डिवाइड करो, और जो करेक्ट है उसे मल्टीप्लाई करो. इज दैट क्लियर? ये एडजस्टमेंट समझा? और अभी अगर ये आपको समझा है या नहीं समझा है? वेरी गुड. तो कौतुक नहीं. तो फिर उस क्वेश्चन के तरफ देखो, तो फिर उस क्वेश्चन के तरफ देखो. रीड. Mean of group of 10 observations, mean of the group of 10 observations, माझ्याकडे काय बघतो ते, प्रॉब्लेम की तरफ देखो ना. mean of group of 10 observations is 40 with a variance of 25. पहले सेंटेंस में क्या क्या दिया है? mean of group of 10 observations क्या मतलब है? n is equal to 10, mean is 40, मतलब x bar is 40, वेरियंस सिग्मा स्क्वायर इज 25. इधर तक समझा? जो दिया है उसे मैंने लिस्ट किया. इट वॉज फाउंड लेटर ऑन दैट वन ऑब्जर्वेशन 6 वॉज रॉन्ग. 6 जो लिया था वो रॉन्ग है, एंड इट शुड हैव बीन व्हाट 8. सो इसका मतलब हो गया कि x रॉन्ग जो है वो 6 है और x करेक्ट जो है वो 8 है. अभी ये जो 40 और 25 आपको मिला है वो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मिला है कि नहीं? एंड देयरफॉर दिस x बार इज x बार रॉन्ग एंड दिस सिग्मा स्क्वायर इज सिग्मा स्क्वायर रॉन्ग. हमें क्या करना है? रेक्टिफाइड वैल्यूज निकालना है, करेक्टेड वैल्यूज निकालना है. समझा? मतलब मेरे को बोलो x बार इज इक्वल टू व्हाट? फॉर्मूला that is equal to summation x over n. तो x बार रॉन्ग, पहले हमें रॉन्ग से स्टार्ट करना पड़ेगा ना. x बार रॉन्ग इज समेशन x रॉन्ग अपॉन n. बट x बार रॉन्ग उन्होंने दिया है, क्या दिया है यार? बोला कि 40. ये n को इधर शिफ्ट करेंगे, n इज 10, देन दिस इज समेशन x रॉन्ग. बहुत आसान है ये. अगर तुम्हारे कैपेसिटी के बाहर का खेल होता तो आई वुड हैव टोल्ड यू वेरी ऑनेस्टली, वेरी फ्रीली, ये आपके बस की बात नहीं है. पर ये आपके बस की बात है तो फिर उसे नामुमकिन मत बनाओ.
अभी दिस समेशन एक्स रॉन्ग कम्स टू बी व्हाट 400, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, समेशन एक्स करेक्ट चाहिए. व्हाट इज एडजस्टमेंट? पाळांनो, व्हाट इज एडजस्टमेंट? दैट इज इक्वल टू समेशन एक्स रॉन्ग माइनस एक्स रॉन्ग प्लस एक्स करेक्ट. तो फिर दिस इज 400 माइनस रॉन्ग एक्स था 6 और करेक्ट एक्स है 8, तो इवेंचुअली इट विल बी 402. क्या समझा क्या? इसको क्या इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार ये पता हो गया तो आपको आएगा. अभी मेरे को चाहिए एक्स बार करेक्ट. टेल मी व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एन. 6 गया बाहर, 8 आया अंदर, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एन? will remain same 10, and therefore it will be summation x now correct upon n. तो ये होगा 402 अपॉन 10, so 40.2. कितना इजी है देखो, कोई 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 संभावना नहीं है गलती करने की. इज दैट क्लियर बहनों? अभी हमें किस में इंटरेस्ट है? हमें किस में इंटरेस्ट है? variance. What is the formula for variance sigma square? It is 1 upon n summation x square minus x bar the square. Basic formula. समझा? लेकिन पहले हमें रॉन्ग से स्टार्ट करना है, लेकिन तो पहले हम सिग्मा स्क्वायर रॉन्ग, समेशन एक्स स्क्वायर भी रॉन्ग, एक्स बार भी रॉन्ग, सब रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग. अभी समेशन सिग्मा स्क्वायर रॉन्ग कितना दिया है? 25. फिर n कितना है? 10. समेशन एक्स स्क्वायर रॉन्ग हमें पता नहीं, बट एक्स बार रॉन्ग वी नो. व्हाट इज दैट? 40 ना, तो 40 का स्क्वायर, एक्स बार द स्क्वायर. तो फिर वो 40 स्क्वायर 1600 को इधर लाया, तो 25 प्लस 1600 दैट इज 1 अपॉन 10 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर रॉन्ग. तो फिर 1625 10 को इधर शिफ्ट किया इंटू 10 इज समेशन एक्स स्क्वायर रॉन्ग. कितना आयो? 16250. बराबर ना? ये क्या है? समेशन एक्स स्क्वायर रॉन्ग. अभी हमें रॉन्ग से कहा जाना है करेक्ट. तो टेल मी समेशन एक्स स्क्वायर करेक्ट विल बी इक्वल टू व्हाट? समेशन एक्स स्क्वायर रॉन्ग माइनस एक्स रॉन्ग का स्क्वायर प्लस एक्स करेक्ट का स्क्वायर. स्क्वायर के साथ है ना ये इफेक्ट. तो फिर कितना आएगा? 16250 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. निकालो, कैलकुलेशन करना आसान है. 36 सब्ट्रैक्ट करो, 64 ऐड करो. 16278. यह समझा यार? हो ना की. तो फिर अभी मेरे को वेरिएंस करेक्ट चाहिए, तो सेम फॉर्मूला बट ओनली वे टू वर्क विथ नाउ करेक्टेड वैल्यू. तो ये क्या होगा? 1 अपॉन 10 इंटू 16278 माइनस नाउ एक्स बार करेक्ट चाहिए ना 40.2. अभी सब करेक्ट है, तो सब जगह करेक्ट लेना पड़ेगा. यहां देखो मेरे तरफ, सिग्मा स्क्वायर करेक्ट विल बी 1 अपॉन n समेशन एक्स स्क्वायर करेक्ट माइनस एक्स बार करेक्ट का स्क्वायर. सब करेक्ट. स्टार्ट किया रॉन्ग से, इवेंचुअली पहुंच गए व्हाट इज करेक्ट. स्टार्ट आप कर रहे हो फेल्यूअर से, एंड होना है सक्सेस से. इसके बीच में जो होता है वो प्रोसीजर है, और दैट प्रोसीजर वी आर सीइंग. समझा? पता निकालो तो काय से यस. रात का लेक्चर कोई मिस करेगा नहीं, अदरवाइज इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो आपकी जिम्मेदारी होगी वो सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की. अगर आप में वो हिम्मत है कि नो वी डोंट वांट योर सपोर्ट, वी कैन डू द प्रॉब्लम्स ऑन आवर ओन, आई डोंट माइंड, डोंट अटेंड द लेक्चर, आई विल बी मोर देन हैप्पी.
बट अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर अटेंड करो. Same link as what I sent yesterday. हो गया. ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया बाळांनो. कितना आया आंसर? काय? इतना ही आया. वेरियंस. वेरियंस. स्क्वायर इफेक्ट. यार करा कि 11 पॉइंट ही आया क्या? हाँ 11.7. तो फिर सिग्मा करेक्ट होगा रूट ऑफ 11.76. तो ये कितना है? 3 पॉइंट. और फिर उन्होंने अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा तो क्या करेंगे? दैट विल बी सिग्मा करेक्ट अपॉन एक्स बार करेक्ट इंटू 100. तो 3.42 ओवर एक्स बार करेक्ट कितना है? 40.2 दैट इंटू 100. तो ये करेंगे तो आंसर मिलेगा. असू दे. हो गया क्या? दैट्स गुड. अभी आपके होमवर्क के लिए होमवर्क करो. नहीं हुआ, नहीं पॉसिबल है तो फिर मत, आई मीन वो अलग बात है, लेकिन ट्राई नहीं करना ये गलत बात है. प्रॉब्लम नंबर 12, 13 ये दो क्वेश्चंस को होमवर्क करके करो. क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13. Online students, you also had to do. There is no exception to this homework for anyone. 12 और 13 ये दोनों प्रॉब्लम्स को होमवर्क करके कोशिश करो. नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट लेक्चर को वैसे भी हम डिस्कस करेंगे. ओके गुड. वी स्टॉप. आज रात को मिलते हैं. और कल लेक्चर नहीं है, फिर भी रात को मिलेंगे. क्या नाम दिया है उसको? नाइट लाइफ. नाइट लाइफ कैन बी एंजॉयड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. भारी नाम दिया है कि नहीं एकदम?